हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शॉ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जो कि है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। तो आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़ उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। There were, however, other kinds of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. Members of each tribe were united by kingship bonds. Many tribes obtained their livelihoods from agriculture. Others were hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts, and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. But the caste based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ट्राइब्स लोग होते थे यानी जो ट्राइबल्स होते थे वो कौन होते थे। तो देखिए, ट्राइब्स जो थे वो सोशल रूल्स जो होते हैं वो नहीं मानते थे। ठीक, सोशल रूल जैसे कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक इंसान एक अपने मतलब कि अगर एक इंसान एक ही शादी कर सकता है अगर उसकी बीवी जिंदा है, अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो उसकी एक ही शादी हुई होगी। ठीक, मतलब कि उसकी एक ही वाइफ रह सकती है। लेकिन ये जो आदिवासी ये बहुत सारी कर सकते हैं। ऐसा मतलब कि ऐसा मेरे को पता नहीं है सच, लेकिन ये ऐसे सोसाइटीज रूल नहीं मानते जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए क्या ये ट्राइबल कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये कोई सा कास्ट सिस्टम ये सारा सिस्टम नहीं मानते। इनके खुद के रूल्स होते हैं और ये हिल्स में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ये एकदम सेपरेट रहना चाहते हैं। इनकी जो लैंग्वेज होती है वो एकदम सेपरेट रहती है, एकदम अलग लैंग्वेज होती है आदिवासीज की लैंग्वेज, और इनका कल्चर जो होता है वो भी एकदम सेपरेट होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में था जो कि हु वर ट्राइबल पीपल। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। कंटेम्पोरेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। अ फ्यू एक्सेप्टेशन अपार्ट, ट्राइबल people did not keep written records, but they preserved rich customs and oral traditions. These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral tradition to write tribal histories. Tribal people were found in almost region of the subcontinent. The area and influence of a tribe varied at different points of time. Some powerful tribe controls large territories. In Punjab, the Khokhar tribe was very influential during the 13th and 14th century. Later, the Gakhar became more important. The chief Kamal Khan Gakhar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar. In Multan and Sindh, the Langhas and Arghuns dominated extensive region before they were subdued by the Mughals. The Balochis were another large and powerful full tribe in the northwest. They were divided into many smaller clans under different chiefs. In the western Himalayas lived the shepherd tribes of Gaddis. The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms, and many others. In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Chiro chiefdoms had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheros in 1591. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued.
Under Aurangzeb, under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chiro forests and subjugated the tribe. The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in the region and also in Orissa and Bengal. The Maharashtra highlands and Karnataka were home to Kolis, Barats, and numerous others. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Further south, there were large tribal populations of Koragas, Vetars, Maravars, and many others. The large tribe of Bhils was spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindars. Many Bhil clans, nevertheless, remained hunter gatherers. The Gond were found in great numbers across the present-day state of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ट्राइबल पीपल कौन हुआ करते थे, यानी कि ट्राइबल पीपल तो हम लोग समझ चुके हैं कौन हुआ करते थे. अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स. तो ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ पे बहुत सारी थी, जैसे गक्कर हो गई, अहोम्स, आर्ग्यून्स, लंगास. यहाँ पे बहुत सिंध में ये सब बहुत सारी क्या ट्राइबल्स ग्रुप हुआ करती थी. ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि एक गक्खर ट्राइब्स के हेड थे, चीफ थे, जिनका नाम था कमाल खान गक्खर. तो इनको क्या बना दिया गया? चीफ बना दिया गया और नोबल बना दिया गया. ठीक है, यहाँ उनके चीफ थे कमाल खान गक्खर, इनको एक नोबल यानी मनसबदार बना दिया गया एम्परर अकबर के द्वारा. ठीक, उनको ही बना दिया गया. और जो अदर रूलर्स थे, मतलब कि जो और भी जैसे बलूचीज थे, उनको क्या एक लार्ज पावरफुल ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट में, उनको क्या स्मॉलर क्लान्स के में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया. और वेस्टर्न हिमालय में जो शेफर्ड गद्दीस थी, उनमें क्या रहते, इनको बांट दिया गया. अब यहाँ पे बहुत सारी जो ट्राइब्स है, जैसे कि गोंड ट्राइब्स, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, इनका भी यहाँ पे क्या नाम आएगा. ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे चीरोज, मतलब कि ये जो अब राजमान सिंह हैं, ये एक अकबर के फेमस अटैकर थे. ठीक है, वो सेनापति थे. इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक चीरोस नाम की एक ट्राइबल ग्रुप था, वहाँ पे 1591 में क्या कर दिया गया? अटैक कर दिया गया. और फिर अंडर औरंगजेब मुगल ने फोर्स करा, ये जो चीरो जिन फॉरेस्ट में रहती हैं, उनमें उनको क्या कर लेना है? उनको जा करके सब्जुएट कर देना है. तो ये जो चीरोस थे, इनको पूरे लोगों ने, जो पहले अकबर से लेकर के औरंगजेब तक जितना भी इनका पीरियड रहा, इन्होंने क्या इनको बर्बाद ही करा. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं किसमें? अपने नेक्स्ट टॉपिक में तरफ, जो कि है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव. Nomadic pastoralists moved over long distance with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो नोमैडिक पीपल्स होते थे, वो ये पीपल्स होते थे जो कि क्या, जिनका जो अपना घर परमानेंटली नहीं बनाते थे, थोड़ी देर के लिए कहीं पे रुके, कोई दूध घी के ऊपर ये डिपेंड रहते थे, उन्हीं को क्या एक्सचेंज कर लेते थे पेस्ट्रोल प्रोडक्ट्स को, उसकी जगह वूल खरीद लेते थे और उसके बाद एग्रीकल्चर में सेटल्ड रहते थे. दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स as they moved from one place to another, transporting them on their animals. The Banjaras were the most important trader nomads. Their caravan was called Tanda. Sultan Alauddin Khilji used the Banjaras to transport grain to the city market. Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjara carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. They transported food grains for the Mughal army during military campaigns. With a large army, could be there could be 100,000, means there could be 1 lakh bullocks carrying grain. Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. Different castes of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw, matting, and coarse sacks.
Sometimes mendicants acted as wandering merchants. There were castes of entertainer who performed in different town and village for their livelihood. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हाँ, तो ये जो लोग होते थे, ये नोमैड्स पीपल, ये एक दूसरे से क्या सामान खरीदते थे, उनको क्या ट्रांसपोर्ट करते थे। फिर इन्हीं में अगर नोमैड्स ट्राइब में बात करा जाए तो एक ट्राइब थी जिनका नाम क्या था, बंजारा ट्राइब्स। ठीक है, तो ये जो बंजारा ट्राइब थे, ये भी नोमैडिक ट्राइब्स थे। ये क्या करते थे, ये अपने क्या ग्रुप में चलते थे, अपने कारवां में चलते थे। अब कारवां क्या था, आपको कारवां तो पता ही होगा, मतलब कि रैली होती थी इसको, मतलब कि आज के भाषा में बोले तो एक टाइप से क्या रैली, उसी को क्या बोला जाता था, कारवां बोला जाता। बिल्कुल लोग बोलते हैं कारवां। ठीक, तो जो कारवां होता था वो उसको अपने कारवां को लोग कहते थे टंडा। ठीक, टांडा। ठीक, वो अपने कारवां को कहते थे टंडा। ठीक, और जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान, उन्होंने क्या किया था, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो बंजारा है इनको क्या, ये जो ग्रेन होता है इनको ट्रांसपोर्ट इन्हीं से क्या ट्रांसपोर्ट कराया था सारा ग्रेन। यानी कि ये लोग क्या बहुत सारे, ये वाली जो ट्राइब है बहुत सारे रूलर्स के द्वारा इस्तेमाल की गई है काम, मतलब कि बहुत ये मदद, इस ट्राइब्स ने बहुत सारे रूलर्स की क्या करी है, मदद करी है। ठीक है फ्रेंड, और इनमें ये ऐसी छोटी मोटी कारवां नहीं, छोटा मोटा कारवां नहीं चलता था इन बंजारों का, इन बंजारों का चलता था। तो इसमें कितने 1 लाख बुलक्स, यानी कि 1 लाख बैलगाड़ियां क्या साथ में चलती थी, यानी कि एकदम रैली, विधायक जी की रैली जाती थी। तो फिर ये लोग क्या करते थे, ये लोग यहाँ पे आते थे डिफरेंट, जैसे कैटल्स हो गए, हॉर्स हो गए, प्रॉस्परस पीपल्स हो गए, ये सब क्या, ये अपने एनिमल्स को सोल्ड कर बेच देते थे, उसके बदले पैसे मिलते थे, उससे कुछ अदर एनिमल्स खरीदते थे, है ना। तो ऐसे क्या ये लोग अपना जीवन यापन करा करते थे। अब हम लोग चलते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। As the economic and the needs of society grew, people with new skills were required. Smaller castes or jatis emerged within Varnas. For example, new castes appeared amongst the Brahmanas. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given status of jatis. Specialized artisans, smiths, carpenters, and masons were also recognized as separate jatis by the Brahmanas. Jatis, rather than Varna, become the basis of the organizing society. Among the Kshatriya, new Rajput clans became powerful by the 11th and 12th centuries. They belonged in different lineages such as Hunas, Chandels, Chalukyas, and others. Some of these too had been tribes earlier. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural areas. Here, a developed society was emerging, and rulers using their wealth to create powerful states. The rise of Rajput clans to the position of ruler set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes became a part of the caste system, but only the leading tribal family could join the ruling class. A large majority joined the lower jatis of caste societies. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and the northwest frontier had adopted Islam quite early. Quite early, they continue to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. The emergence of states in closely related to social change amongst tribal people. Two examples of this important part of our history are described below. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो 11th-12th सेंचुरीज में क्या आने लगा कि यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम थे ये कहाँ पर आने लगा, ये ट्राइबल सोसाइटी में भी क्या है वर्ण सिस्टम इन्फ्लुएंस होने लगा। तो इससे क्या होने लगा कि जो वर्ण सिस्टम जैसे सोसाइटी में आने लगा, तो वर्ण सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी जो सोसाइटी जो
ये ट्राइबल्स कम्युनिटी थी ये क्या हिंदुज़्म या मुस्लिम्स में क्या कन्वर्ट होने लगी। ठीक है, तो इसमें क्या होने लगा, जैसे ये इसमें कन्वर्ट होने लगी तो इनको क्या वर्ण सिस्टम के हिसाब से इनमें देखा जाता था इनका वर्ण कैसा है, तो उस हिसाब से क्या इनको कास्ट दी जाती थी। तो इनमें कास्ट सिस्टम तो होगा ही, ठीक, तो उनको उस हिसाब की क्या दी जाती थी, कास्ट दी जाती थी। तो अब क्या हुआ, उनको कास्ट मतलब कि कास्ट दी जाती थी। तो बहुत सारी जो ट्राइब्स, बहुत कम ट्राइब्स थी जिनको क्या मिलता था, जिनको अपर कास्ट मिलता था, और बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जिनको क्या मिलता था, जिनको बहुत लोअर कास्ट, क्या लोअर कास्ट की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, तो और ये जो जितनी भी ट्राइब्स थी ये अपने ही आप नहीं वर्ण सिस्टम में, यानी जो रिलीजन है उनको नहीं ज्वाइन कर रही थी, क्योंकि जो वैसी ट्राइब्स जो कि काफ़ी वेल्दी ट्राइब्स थी, यानी कि उनके पास काफ़ी पैसा था, वही ट्राइब्स का ये वर्ण सिस्टम ज्वाइन कर रही थी। बाकी बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो क्या, वो बहुत ही ज़्यादा क्या गरीब थी, तो इसलिए क्या वो अपना वही ट्राइबल ग्रुप जैसे नोमैड्स की तरह अपना काम चलाते, वैसे वो चला रहे हैं। और वो इवन आज तक क्या, आज 2024 आ गया है, तो अब भी क्या वो लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या एक लुक देखने वाले हैं, क्लोजर लुक, किसके तरफ से, द गोंड्स की तरफ से। द गोंड्स लिव इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री inhabited by गोंड्स। They practices shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own Raja or Rai. About the time that the power of Delhi sultans was declined, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate. The smaller Gond chiefs, the Akbarnama, a history of Akbar's region, mentioned the Gond kingdom of Garha Katanga that had 70,000 villages. The administrative system of these kingdoms was become centralized. The kingdom was divided into Gards. Each Gard was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was subdivided into Barhots, with which were made up of 12 villages. The emergence of large states changed the nature of Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahmins received land grants from the Gonds Rajas and become more influential. The Gond chiefs now wished to be recognized as Rajputs. So Aman Das, the Gond Raja of Garha Katanga, assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salban Salban Salbahan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. Dalpat, however, died early. Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son Bir Narayan. Under her, the kingdom became even more extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garha Katanga. A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She has defeated and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting soon after. Garha Katanga was a rich state. It earned much wealth and trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. They annexed part of the kingdom and granted the rest of Chandra Shah, an uncle of Bir Narayan. Despite the fall of Garha Katanga, the god kingdoms survived for some time. However, they became much
weaker and later struggled unsuccessfully against stronger बुंदेलास एंड मराठास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हाँ, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक जो गोंड्स ट्राइब होती थी, ये क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये आप लोगों को शायद से पता नहीं होगा, मे बी आप लोगों को 6 में बताया गया है ये, नहीं तो हम लोग 8th क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि देखो, जो ट्राइब्स होती है वो तो एकदम घूमती रहती है, मूविंग नोमैड्स पीपल यानी कि मूविंग पीपल, ठीक है। तो वो ऐसे घूमते रहते, ठीक है। फिर अब उनको कहीं रुकना हुआ तो वो रुक गए, ठीक। फिर रुके तो वो क्या थोड़े दिनों के लिए उसी जगह में क्या करते हैं, थोड़े दिनों के लिए वो उसी जगह में खेती करने लगते हैं, ठीक। उसी जगह में खेती करेंगे, खेती करने के बाद फिर क्या, जैसे उनकी फसल हो जाएगी उसके बाद वो क्या आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये अपना जो टॉपिक है उसमें क्या आता है कि एक अकबरनामा है, एक हिस्ट्री है किसकी, अकबर्स रेन की, अकबर के राज की। उसमें क्या है कि जो गोंड किंगडम्स है उसको क्या गढ़ कटंगा में, जो गोंड किंगडम था वो कहाँ था, गढ़ कटंगा में था। तो ये जो गढ़ कटंगा है ये गोंड ट्राइब थी, उसका किंगडम था। उसमें गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे, 70,000 विलेजेस थे, ठीक है। और हर विलेज हर किंगडम्स को क्या डिवाइड कर रखा था गर्स में, ठीक। और एक घर किसको, मतलब कि जो एक घर था उसमें 84 विलेज आते थे जिनको 84 कहा जाता था, और भरवोट्स आते थे जिनमें क्या 12 विलेज हर आते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पर एक ट्राइब था जिसका मतलब कि ट्राइबल पीपल थे जो चलाते थे, उनका नाम था अमन दास, ठीक। अब अमन दास क्या करा कि अमन दास, अब कोई अमन दास बन गया। अब अमन दास क्या कर रहा है, अपना राज्य चला रहा है, तो उसका नाम अमन दास है ना। तो उसका नाम अमन दास है तो वो क्या राजा की तरह उसका नाम नहीं। अब जैसे पहले के राजा होते थे, जैसे मतलब विक्रमादित्य, ठीक है, हर्षवर्धन, मतलब ये तो थोड़े पहले के इनके, मतलब इनके बाद के हैं, लेकिन तब राजाओं के नाम कैसे ऐसे, जैसे वीर राजेंद्र, है ना। तो ये सारे नाम राजा के होते थे, और इनका नाम क्या था, अमन दास। तो अमन दास का इनका नाम सूट नहीं कर रहा था, इन्होंने सोचा तो इन्होंने अपना नाम रख लिया संग्राम शाह, ठीक। और संग्राम शाह इन्होंने अपना नाम रख लिया। और संग्राम शाह का जो बेटा था दलपत नाम था उसका, उसने क्या एक रानी थी जिनका नाम दुर्गावती था, उससे शादी कर ली, जो कि किसकी, सलबाहन की क्या थी, बेटी थी, जो कि एक चंदेल राजपूत राजा थे, कहाँ के, महोबा के। फिर उन्होंने क्या किया, महोबा के राजा ने इनको क्या करा, इनसे शादी कर ली। फिर उसका दलपत राय जो था वो मर गया। दलपत राय के मरने के बाद क्या होने लगा कि उनका बेटा था जिसका नाम था वीर नारायण, ठीक। फिर वीर नारायण पैदा हुआ। फिर 1565 में अकबर के कमांडर थे असफ खान, उन्होंने गढ़ कटंगा में अटैक कर लिया। और रानी जो थी रानी ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी रानी नहीं जीत पाए और रानी मर गई, उनको क्या सरेंडर नहीं करा। फिर क्या हुआ कि रानी ने सोचा मैं मर जाऊंगी, लेकिन सरेंडर नहीं करा और रानी मर गई, ठीक। फिर रानी का बेटा भी लड़ के मर गया। फिर जो अकबर था उसने इनको अपना कंट्रोल ले लिया, और वीर नारायण के एक अंकल थे जिनका नाम था, क्या नाम था इनका, चंद्र शाह, ठीक। फिर चंद्र शाह एक टाइप से ये अंकल थे, ठीक। तो चंद्र शाह को क्या कर दिया, वहाँ का बना दिया, क्या वहाँ का लीडर बना दिया, वहाँ का राजा बना दिया। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।